Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rishi Karunikastasyaha Pradaduvayam Ishvaraha Dharmasya Tattvam Jnanam Cha Mamapi Uddeshya Nirmalam. Narad Muni delivered his instruction both to me who was within the womb and to my mother who was engaged in rendering him service, because he is naturally extremely kind to the fallen souls. Being in a transcendental position, he gave instruction on religion and transcendental knowledge. These instructions are free from all material contaminations. Dulaba. So there are 2 points there. One is extremely kind, and then there is the position of Bhagavad Dharma. So that is said that a devotee naturally merciful. There are 4 qualities which develop when you become a gentleman. What are the 4 qualities? The person is austere, tapaha. The person is daya, merciful. The person is shaucha, is very clean. What is the 4th quality? The person is truthful. So these are the 4 qualities an individual should develop as he advances. And naturally, devotee has these 4 qualities. That means all the 50 qualities, say, of an individual are permutation, combination of the fundamental 4 qualities. By combining, we can create fundamentally 4 qualities. These are basics. Rest will develop. So, person, one of the qualities being discussed here is very, very merciful. The Prabhupada says that the 2 kind of people, one is called Goshtanandi, one is Bhajananandi. Bhajananandi means he is preaching the message of Krishna consciousness. Not only is practicing, he is preaching also. One is Goshanandi, means he is in his own sadhana. Comparatively, Bhajananandi is better because it brings out the message to other people. Many a times, spiritual life people think, what people generally think spiritual life means. I'll go deep, some side Himalayas and the forest. Because he is selfish. He is only thinking about himself. Oh, I live very peaceful. I live very peaceful. It's not correct, that kind of attitude. He isn't being selfish. He is selfish. For his own self, he is working. So, Krishna consciousness is so beautiful. Therefore, we have a famous saying when you take Hindi classes, Chhodna nahi jodna hai. That person also is abandoning his also called society, social duties, responsibilities. Nothing to give up. Krishna consciousness is basically addition. We add. And these practices are so powerful that person can advance even if he is living in society. है ना? अगर बाकी आपके जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो ये इम्पर्सनलिस्ट जनरली लेते हैं, मोनिस्ट, अद्वैतवादी, उनके मार्ग में अगर आप संन्यास नहीं लेंगे तो आध्यात्मिक आपका जीवन भी शुरू नहीं होता. पहला चीज संन्यास हो, फिर बात करेंगे. They don't even talk. But here, many people get surprised. Just like, ISKCON movement. So many devotees are grastas. So many devotees may be in whatever situation. But they can practice Krishna consciousness. Because the process is very powerful. Person can practice Krishna consciousness even in the grasta. Person is working outside, he is studying, he can also practice. So the process is extremely powerful. But provided you follow the process. But as such, when the processes are weak,
then there are too many unwanted restrictions. People can't even understand. They think spiritual life means किसी एक कुटिया में रहने का, जंगल में, जमीन में सोने का, कुछ फल दूध खाने का. बट वी सी युधिष्ठिर महाराज तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के. वो तो महल में रह रहे थे, वो तो कुटी में नहीं रहे, और वो फल और दूध नहीं, बहुत 56 भोग खा रहे होंगे. राजा तो कम से नहीं खाएगा, खाए कितना भी एटलीस्ट उसको मिलेगा तो 56. सो ऐसे ऐश, एंड इज बीइंग वर्शिप. बहुत बड़ा आर्मी है, ही इज वेरी बिजी इन सो मेनी एक्टिविटी. द एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे भक्त हो सकता है? जनरल ओपिनियन फॉर कृष्णा, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, बिकॉज भक्ति इज अहेतुकी. It's true, we should try to see that our material circumstance or situation is made favorable for practicing Krishna consciousness, not that it becomes unfavorable. But the situation does not allow you to, people don't allow, hey, क्या कर रहे हो जब बकवास टाइम बर्बाद करते हो, कुछ और करो, आओ हमारे साथ बैठो टीवी देखो. मैंने टाइम घर में बोलते हैं बेटा जप नहीं करो. ठीक है, जप नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बेटा टीवी देख रहे हैं. वो ठीक है, ये जब करना ठीक नहीं है, पूरा दिन बैठ के टीवी देखना ठीक है. ऐसे मूर्ख लोग हैं. इवन इन स्टूडेंट कम्युनिटी, एनीवन, सपोज सम स्टूडेंट गेट्स अप इन द मॉर्निंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. व्हाट विल से? फ्रेंड्स, व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम? यू स्टडी, यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, दिस इज ओके. Now when 6 hours whole day he watches TV or is sitting playing game on his mobile, that is not okay. Even sometimes unfortunately parents और भी वैसे ही होते हैं, है ना. बेटा 10 घंटा गपशप करे, मूवी देखे, दारू पिए, पार्टीज में जाए, वो सब चलता है आजकल का लड़का. बट 5 मिनट हरि नाम जप करे, अरे ये नहीं करने का, ये उम्र नहीं है अभी ये सब करने की. सो अनफॉर्चुनेट, very very unfortunate. Prabhupada therefore said the disaster of India is that people have left their culture and they become beggars now. जब प्रभुपाद जी को लोग मिले थे अमेरिका में, तो सोचे कि इंडिया में भी सब ऐसे ही लोग होंगे, प्रभुपाद से भरा होगा सारे दिन, करोड़ों प्रभुपाद होंगे इधर. शुरू में ऐसा सोचा उन्होंने. तो प्रभुपाद से बोला है भारत का क्या स्थिति है? अरे बहुत दुर्भाग्य, क्योंकि देखा उन्होंने 30 साल यहाँ पर मूवमेंट शुरू करने की कोशिश करी थी, एक आदमी रेडी नहीं हुआ. क्योंकि प्रोसेस तो कोई भी अडॉप्ट करता चलेगा ना, ये तो प्रोसेस है. क्या प्रोसेस था? आप 4 नियम पालन करो, हरि नाम जप करो, आप भक्त बन जाओगे. ये प्रोसेस था. ये प्रोसेस कहीं पे भी चलेगा. यहाँ पे भी लोगों को बोला भाई हरि नाम जप करो. हाँ, मेरी दादी करती थी. अच्छा बोल रहे हैं आप, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, दादी करती थी. और नियम पालन क्यों करें? अमेरिका के लोग नियम पालन करते नहीं करते, देखो कितना सक्सेस है उनके पास, रिचेस्ट कंट्री बन गया, पावरफुल बन गया. ये सब अरे बहुत दुनिया में देखे हैं ऐसे लोग. रोमन एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, बड़े बड़े एम्पायर हैं, सब ध्वस्त हो गए. अगर वो नियम पालन नहीं करेगा इंडिविजुअल या समाज, एक टाइम का बात है, बस दिवाली का पटाखे की तरफ फट. अभी लोगों बड़ा अच्छा दिख रहा, बड़ा अच्छा. कोई सोच भी नहीं सकता था ब्रिटिश एम्पायर ऐसे खत्म होगा, कुछ भी नहीं बचा उसका. कह रहे एक खाली एक आइलैंड बचा, उसमें भी वो विभाग होने के चांसेस हैं. स्कॉटलैंड आइलैंड, वो इंग्लैंड के साथ नहीं रहना चाहते, बहुत प्रॉब्लम उधर भी. उतने में भी एक द्वीप भी इकट्ठा नहीं रहना चाहता है. पहला पूरा विश्व को पकड़े हुए थे लोग. तो ये तो काल है, काल के अनुसार चीज़ें ध्वस्त हो जाती है. तो उसके पीछे ज़्यादा विमोहित नहीं होना चाहिए. चंचल, जो आदमी भगवान की सेवा नहीं करता, उसके पास लक्ष्मी है, वो भी चंचल का निरूपण, कभी भी चले जाएगी. चंचला, इसलिए लक्ष्मी को चंचला दूसरा नाम बोलते हैं. ठीक है, पहले हो सकता है कुछ कर्म किए होंगे, मिला, लेकिन फिर चला जाएगा. तो हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि लोगों को सीरियस होने का है. तो 2 पॉइंट इस श्लोक पे हम लोग जो बोलना चाहते थे, पहले था
दया। प्रभुपाद जी एक बारी डिवोटीज के साथ डिस्कस कर रहे थे, बोलते हैं देखो जो भी हो ये मनुष्य जीवन को नहीं गवाओ भाई, नहीं गवाओ, वेरी सॉफ्टली, डोंट वेस्ट, बहुत अच्छा अवसर है, इसको आप नहीं गवाओ। हा हंत हंत विश्वक्षनाम असाधु, बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा कि मनुष्य जीवन पाके भी तुम अगर कृष्ण के चरण नहीं प्राप्त कर पाए। सीरियस रहो, ठीक है। Therefore, first thing is devotees actually speaking out of compassion. Devotees को immediately they felt, yes, let us become serious. So devotees always, Acharya is speaking out of compassion. तितिक्षवा कारुणिकः सुहृद सर्वभूतानाम अजात शत्रवा शांता शांतवा साधु भूषणम। ये साधु के लक्षण में करुणा एक लक्षण है। प्रभुपाद जी हमेशा प्रहलाद के एग्जाम्पल लेते थे, वो भी बहुत करुणा दिखाई उन्होंने भक्त के रूप में। एक फेमस श्लोक को बोलते हैं, नैवो दुजे परदुरत्य वैतरन्या तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुतो विमूढ़ान। इसे नैवो दुजे परदुरत्य वैतरन्या, भगवान ये वैतरणी, इससे मेरे को डर नहीं लगता। ये जो आपके दुनिया है बहुत, एक्चुअली जो मृत्यु लोग बहुत डरावना है। मृत्यु तो निश्चित है ना, अगर कसाई खाने में आप एक जानवर हो, आपके लिए क्या अभी शुभ है उधर, सब अशुभ है। कसाई खाने में सब अशुभ है, कुछ भी शुभ नहीं उधर। आप कसाई खाने में कोई जानवर फंसा, उसको बोलो ठीक है बड़े मजे आ रहे, पता है ये हुआ, उसको क्या, उसको दिल टूट गया, वो कहाँ फंसा हुआ है, अभी उसकी मृत्यु आने वाली है, कैसे पकड़ा गया। तो सिमिलरली आत्मा को पहले ये समझना चाहिए कि कसाई खाने में फंसे, इसको बहुत बड़ा मृत्यु लोक है। ये पूरा पृथ्वी ले लो या ब्रह्मांड ले लो, एक बहुत बड़ा कसाई खाना है। बस कसाई खाने में क्या अच्छा न्यूज आता है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ खाली दुख है और ये टेम्पररी है। कसाई खाना है, मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में कुछ भी अच्छा नहीं है ही नहीं सकता अच्छा। तो जब तक आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे, आपको शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेटेरियल प्लेटफॉर्म में तो कुछ अच्छा है ही नहीं था। मृत्यु निश्चित है तो फिर अच्छा क्या हो गया। कोई भी आदमी हाँ बड़ा अच्छा होगा, तेरी मृत्यु निश्चित है आने वाली। हाँ देखो प्रभुपाद जी मजाक करते हैं कि एक एक साल आदमी का बढ़ता है, सेलिब्रेशन करते हैं बर्थडे। सेलिब्रेशन किस चीज़ का, आप मृत्यु के और पास चले गए, एक साल और पास चले गए। शरीर में जीवन सीमित रहता है। जैसे आपने मोबाइल खरीदी, उसका लाइफ जनरली 3 साल रहता है, 3 साल में सब खराब हो जाते हैं। 1 साल हो गया, सेलिब्रेट करो, क्या सेलिब्रेट कर रहे हो, अभी उसके ख़त्म होने के 1 साल आपका पास आ गया बस। सो ये जो शरीर है, ये षड्विकार से फंसा हुआ है, दुखालयम अशाश्वत, देर इसीलिए हमको इस शरीर से ज़्यादा बधा नहीं रहना चाहिए। सो तितिक्षवा कारुणिका, पहला चीज डिवोटी बहुत ही मर्सीफुल होता है। नारद मुनि भी प्रहलाद महाराज को कथा बोले थे कृपा से, और प्रहलाद महाराज हमेशा ग्रैटिट्यूड है। जब नरसिंह देव का उनको दर्शन होता है, बोलते हैं वो मेरे गुरु की तरह, मेरे को उनका आभार है कि उनके दिए गए मार्गदर्शन से आज मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। आई एम एबल टू टेक योर दर्शन माय लॉर्ड बिकॉज ऑफ द गाइडेंस गिवन बाय योर प्योर डिवोटी। उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, very very important, we do not forget. This is one part. And the second part Prabhupada says about Narad Muni here is that he gave Prahlad Maharaj भागवत धर्म। बहुत तरह के धर्म है दुनिया में, करीब करीब सभी धर्मों में आदमी अपने सुख के लिए भगवान के पास जाता है। इसको भागवत धर्म नहीं बोला जाता, कैतव धर्म बोला जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है डिवोटी ने। कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं ये प्रार्थना करने, भगवान मैं आपकी तरह आनंद करना चाहता हूं।
मैं आनंद करना चाहता हूं आपकी तरह, आप आशीर्वाद दें। ये जनरली जो मंदिर, जो भी लोग भगवान के पास जाते हैं, इसी तरह जाते हैं। भगवान की सेवा करना कोई नहीं चाहता। एक इसलिए बहुत अच्छा किसी ने बोला, यू वांट टू एंजॉय लाइक गॉड और यू वांट टू एंजॉय विथ गॉड। एक आदमी को तो भगवान से मतलब है नहीं, चलो छोड़ो। हाँ, वो एंजॉय करना चाहता है भगवान के आशीर्वाद के बिना, लेकिन एंजॉय करना चाहता है, अपनी इंद्रिय एंजॉय करना चाहता है। दूसरा आदमी भी अपनी इंद्रिय एंजॉय करना चाहता है भगवान के आशीर्वाद से। ज्यादा फर्क नहीं है उस नास्तिक में और ये कॉल्ड आस्तिक में। इसीलिए लोग सोचते हैं, अरे भगवान का आशीर्वाद लिया, मेरे को तो कुछ अच्छा एंजॉयमेंट नहीं मिला, छोड़ो, इस भगवान से मतलब नहीं। उनको कोई ज्ञान नहीं किसी के पास। आई बिलीव इन दिस गॉड, आई बिलीव इन दैट गॉड, लोग ऐसा बोलते रहते हैं, करेक्ट, जनरली बोलते रहते हैं, आई पुट फेथ इन दिस गॉड। उसको भगवान का डेफिनेशन तक मालूम नहीं है, करेक्ट। जनरली आप किसी भी मंदिर में, किसी घर में मंदिर खोलो, हजारों पिक्चर लगी है, ये भगवान है, ये भी भगवान है, उसको भगवान के डेफिनेशन क्या है, क्या गीता शास्त्र में समझाया है इसके बारे में, मालूम नहीं। अपने ही मन से, कल्पना से कुछ विचार बना लेते हैं ये लोग, और तोड़ मोड़ के इधर से, अगर श्लोक इधर उधर से तोड़ मोड़ के टीवी से, न्यूज़पेपर से, कुछ ऐसा होता है क्या? इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। अगर आपको सपोज कुछ पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाते हैं, नियम पालन करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता है, आपको गीता समझना है, और हजारों बार जाओ लोगों को, प्लीज़ आइए मंदिर में, आपको गीता सिखाएंगे, प्लीज़ आइए, नहीं आएंगे लोग। मेरे को तो गीता समझ आ गई स्वामी जी। कुछ लोग ऐसा भी, आइए आप बहुत कृपालु हैं, ऐसा बोलते हैं हम लोग, आप बहुत मदद करते हैं मंदिर को, कभी आइए आपको थोड़ा गीता समझाएंगे। नहीं स्वामी जी, गीता तो मेरे को समझ आ गई। और दिनचर्या देख लीजिए, उनका लाइफ देख लीजिए, एक भी शब्द समझ नहीं आया। जैसे धृतराष्ट्र, वो भी गीता सुना था। तो सब आदमी सोचता है उसको लाइफ स्किल मालूम है, लाइफ कैसे जी रहा है सबको मालूम, जानवर को भी मालूम है वो तो कैसे जीवन जीना है, लेकिन मनुष्य जीवन में इस तरह नहीं चलता। हाँ, भागवत धर्म अलग चीज है। हाँ, भागवत धर्म परो धर्म, सवय पुंसा परो धर्म, यथा भक्ति अधोक्ष जय अहेतु की अभितेता आत्मसुप्रसिद्धि। तो भागवत धर्म मतलब ये सिखाता है कैसे हम भगवान की सेवा करें। नास्तिक लोग इंद्रिय भोग कर रहे हैं भगवान के आशीर्वाद के बिना, आस्तिक लोग इंद्रिय भोग कर रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। दोनों ही बकवास है। आस्तिक बेटर है नास्तिक, बट को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हम लोगों को दोनों में। और जनरली समाज में आपको 100% लोग या तो ऐसे नास्तिक मिलेंगे या ऐसे आस्तिक मिलेंगे। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह अपना इंद्रिय भोग करना चाहते हैं भगवान के आशीर्वाद या बिना आशीर्वाद, बस। उनका भगवान में विश्वास कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा खरोचो निकल जाएगा, थोड़ा हल्का सा निकल जाएगा, विश्वास बहुत कमजोर है, सुपरफिशियल बोलते हैं ना इसको, एक नाटक बस। स्पिरिचुअल लाइफ उनका एक नाटक ही है। कनिष्ठ, ऐसा नहीं है अभक्त बोल सकते हो ना, कनिष्ठ है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, हजारों लोग आते थे मंदिर में, बड़े मंदिर में, और वहाँ बैठा रहता था। तो मैंने सोचा अरे इतने लोग आते हैं तो थोड़ा गीता का ज्ञान सुनेंगे, अच्छा रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है मंदिर में, बीच बीच में ऑल्टर बंद होता रहता है मंदिर में, तो ये आरती है, ये भोग है, बीच में जो बंद होता है, तो वो हजारों लोग थे। मैंने कहा बैठ जाओ, मैं आसन लेके ऐसे बैठ जाता था। मैं आपको गीता का पहला श्लोक एक आदमी की आंखें सुनने के लिए रेडी नहीं है, उनकी आंखों देख के पता चलता है, एक का नहीं, हजारों, पूरा मंदिर बैठा है। भाई गीता में बहुत अच्छा ज्ञान है, एक सीक्रेट है गीता में, उनको इतना मन विचलित है। वो मंदिर गीता का ज्ञान प्राप्त करने नहीं जाते जनरली लोग, लाखों करोड़ों लोग जाते, वो बहुत आस्था है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, लेकिन लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। इसलिए शास्त्र में बोला गया है कि तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम।
जब तक आपको कुछ प्रश्न ना हो, जिज्ञासा नहीं हो, गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। और मंदिर नहीं है उधर जहां गुरु नहीं है। तीर्थ स्थल भी तीर्थ स्थल नहीं है जहां पे संत नहीं है। कह रहे बोला जाता है ना, जनरली लोग क्या तीर्थ स्थल गए और कुंड में नहा लिया, तो भागवत में बोलते हो तो जानवर भी कर सकता है ना। जानवर भी जाके तीर्थ स्थल में नहा के बाहर आ सकता है। मनुष्य को फायदा क्या है कि एक्चुअली पहले तीर्थ स्थल में कुछ संत होते थे, अभी हम भी जाते हैं तीर्थ यात्रा में, लेकिन याद क्या चीज़ रहती है, जब कुछ बहुत अच्छा हरिनाम होता कहीं किस जगह में, जहाँ कुछ बहुत अच्छा कथा वही याद रहता है, बाकी चीज़ तो भूल जाते हैं हम लोग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग जैसे प्रहलाद महाराज ने ज्ञान, प्रहलाद महाराज भी नित्य सिद्ध है, उनको क्या जरूरत था, एक एग्जाम्पल दिखाया भाई देखो गुरु की जरूरत है, और कितने प्रेम से कितने रेस्पेक्ट से नारद मुनि की बात कर रहे हैं। अरे मेरे गुरु तो बहुत शक्तिशाली है और उन्होंने इतने अच्छे से मेरे को भागवत धर्म समझाया, दैट इज द वे। बट हम सीरियस नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है। लोग जनरली देखते हैं अरे भाई ये लोग साधु भी ऐसा बोलते हैं बड़ी बड़ा चीज़, लेकिन सब खोटे साधु हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं मार्केट में जब आप लेते हो पैसा है तो पैसा भी खोटा होता है, लेकिन क्या करते हो, असली पैसे को ढूंढते हो। कौन से? आरबीआई गाइडलाइन से, ठीक है ना। आप वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप सीरियस होंगे तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, बिकॉज हम सीरियस नहीं है, इसलिए लोग हमको मूर्ख बना के चले जाते हैं, हमारा टाइम हमारा पैसा लेके चले जाते हैं धर्म के नाम पे भी, ठीक है। तो इस ऐसे धर्म की बात नहीं हो रही भागवत में। भागवत में भागवत धर्म अलग है। धर्म प्रोजित कैतवत्रा परमो निर्मसरा नाम सताम, ये तो सब रिजेक्ट हो चुका है। कैतव धर्म को प्रभुपाद जी बोलते हैं इट हैज़ बीन किक्ड आउट ऑफ द पेजेस ऑफ भागवतम, भागवतम के किताब से लात मार के बाहर कर दिया है। तो ये भागवत धर्म अलग चीज़ है। भागवत धर्म में सवय पुंसा पर धर्म यथा भक्ति अदोक्ष जेव, डायरेक्टली भगवान की कैसे सेवा करना है ये सिखाया जाता है। और जो भगवान की सेवा होती है बिना किसी पर्पस के होती, अहेतु की एंड अप्रतिहता, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पर्पस। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्म सुप्रसिद्धति, इसको फॉलो करने से हमारा दिल पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसकी है भागवत धर्म। इसी का डिस्कशन आता है अभी कि नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को कौन सा धर्म दिया, भागवत धर्म, धर्म ऑफ अटैचमेंट डायरेक्टली टू द सुप्रीम लॉर्ड। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं क्या, भक्ति अमाम अभिजानाति, मार्ग को खाली मेरा भक्त समझ सकता है। और एक और श्लोक में लिखा गया जिसमें कोट किया है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञान चौदह हेतु के, ज्ञान वैराग्य सब दिल में प्राप्त हो जाएगा अगर आप अच्छे भक्त बन जाएंगे। जनरली हम तरह तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ये तरीका से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो तरीका से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ढंग से जब सुन लो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो कि अपना मन पूरा दिन भगवान की सेवा में लगा दो, ऑटोमेटिकली आपकी बाकी प्रॉब्लम निकल जाएगी। हम गलत जगह फोकस करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। तो ये दो चीज़ इस श्लोक में बहुत अच्छा बोला गया है। तो हमको हर दिन टाइम देना चाहिए, ध्यान से भागवत सुने और आध्यात्मिक प्रगति करें। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।